Hello dear students, this is the next or last video of key elements of a democratic government civics chapter 4. In our last video, we discussed about that how South Africa became a democratic country. After a long struggle against apartheid, they succeeded and in 1994 South Africa became a democratic country. Second, how people participate in the process of government. This participation takes place through voting in elections. In addition to elections, there are several other ways of participation. Some such methods are dharnas, rallies, strikes, signature campaign, and other form of protest. Now, this video will start with the topic of need to resolve conflict. Need to resolve conflict मतलब विवादों का समाधान. In Maya's story, you read about how conflict can often lead to violence and death because one group decides that it is alright to use force to prevent the other group from protesting. माया की स्टोरी में आपने पढ़ा कि कैसे विवादों या समस्याओं के समाधान के लिए कई बार हिंसा का प्रयोग किया जाता है. ऐसा इसलिए होता है कि एक ग्रुप यह मान लेता है कि जो दूसरा ग्रुप है उसको विरोध करने से रोकने के लिए किसी फोर्स का इस्तेमाल करना ठीक रहेगा. कॉन्फ्लिक्ट्स occur when people of different cultures, religions, reasons or economic backgrounds do not get along with each other or when some among them feel they are being discriminated against. विवाद या झगड़ा तब बढ़ता है जब विभिन्न धर्मों, संस्कृतियों, क्षेत्रों और आर्थिक पृष्ठभूमियों के लोग एक दूसरे के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते हैं. ऐसा तब भी होता है जब कुछ लोगों को ये लगता है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है. People may use violent means to settle their differences. This leads to fear and tension among others living in an area. The government is responsible for helping to resolve conflicts. लोग अपने विवादों को ख़त्म करने के लिए हिंसात्मक तरीके भी अपनाते हैं जिससे दूसरे लोगों में डर और असुरक्षा की भावना फैलती है. सरकार की ये जिम्मेदारी होती है कि वो जो भी विवाद या झगड़ा है उसका समाधान निकाले. Let's read about some of the conflicts in our society and the role of the government in resolving them. आइए अपने समाज के कुछ विवादों के बारे में पढ़ें और ये समझें कि सरकार इनके समाधान में क्या भूमिका निभाती है. Religious processions and celebrations can sometimes lead to conflict. For example, the route a procession take may lead to a conflict. धार्मिक जुलूस और उत्सव कई बार समस्या का कारण बनते हैं. उदाहरण के लिए धार्मिक जुलूस किस रास्ते पर निकलनी चाहिए यही कई बार विवाद का कारण बन जाता है. द गवर्नमेंट पर्टिकुलरली द पुलिस में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन गेटिंग रिप्रेजेंटेटिव्स of concerned communities to meet and try and arrive at a solution. At times there is fear that violence may erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not take place. कई बार इन जुलूस में हिंसा भड़कने का खतरा रहता है. कभी कभी जुलूस के लोग काफ़ी एक्साइटेड हो जाते हैं. कभी लोग जुलूस पर पत्थर फेंकने या उसे रोकने की कोशिश करते हैं. सरकार खासकर पुलिस ऐसे मौक़ों पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. पुलिस की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करने की होती है कि जुलूस में आपस में टकराव की स्थिति पैदा ही न हो और हिंसा न भड़के. वह सभी पक्षों को एक जगह बैठाकर बात करवाती है ताकि कोई भी झगड़ा या विवाद जो उनके बीच चल रहा हो उसका समाधान निकाल सके. Rivers too can become a source of conflict between states. A river may begin in one state, flow through another, and end in a third. The sharing of rivers' water between different states that the river goes through is becoming an issue of conflict. नदियाँ भी कई बार विवाद का कारण बन जाती हैं. कुछ नदियाँ एक से अधिक राज्यों से होकर बहती हैं. जिन राज्यों से नदी गुजरती है उनके बीच में नदी
नदी के जिन राज्यों से होकर नदी गुजरती है उनके बीच में नदी के पानी का बंटवारा कई बार विवाद का कारण बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यू मे हैव हर्ड अबाउट द कावेरी वाटर डिस्प्यूट बिटवीन कर्नाटका एंड तमिलनाडु। उदाहरण के लिए आपने कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच कावेरी नदी के पानी को लेकर चल रहे झगड़े के बारे में सुना होगा, विवाद के बारे में सुना होगा। द वाटर स्टोर्ड in Krishnaraja Sagar Dam in Karnataka is used for irrigating a number of districts and for meeting the needs of the city of Bengaluru। कर्नाटक के कृष्ण राजा सागर डैम में भरा हुआ पानी कई जिलों में सिंचाई के काम आता है। इस पानी से बेंगलुरु शहर की सभी ज़रूरतें भी पूरी होती हैं। The water stored in Mathur Dam in Tamil Nadu is used for crops grown in the delta region of that state। तमिलनाडु का जो मैथुर डैम है उसमें भरे हुए इसी नदी के पानी से राज्य के डेल्टा क्षेत्रों की सिंचाई होती है। A conflict arises because both dams are on the same river। दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, इसलिए दोनों बांध एक ही नदी पर बने हुए हैं, इसलिए इससे क्या विवाद उत्पन्न हुआ। The downstream dam in Tamil Nadu can only be filled up if water is released from the upstream one located in Karnataka। कर्नाटक का कृष्ण सागर डैम कावेरी नदी के ऊपरी छोर पर है और तमिलनाडु का जो मैथुर डैम है वो नदी के निचले छोर पर है। तो मैथुर डैम में पानी तभी भरा जा सकता है जब कृष्ण राजा सागर डैम से पानी छोड़ा जाए। Therefore, both states can't get as much water as they need for people in their states। This leads to conflict। The central government has to step in and see that a fair distribution is worked out for both states। दोनों राज्यों को अपने लोगों की ज़रूरत के लिए भरपूर पानी चाहिए जो कि नहीं मिल पाता, इससे विवाद उत्पन्न होता है। तब राष्ट्रीय सरकार को कदम उठाना पड़ता है ताकि दोनों राज्यों के लिए पानी का सही बंटवारा हो पाए। इक्वेलिटी एंड जस्टिस, समानता और न्याय। इक्वेलिटी मतलब समानता और जस्टिस मतलब न्याय। वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स कमिटमेंट to equality and justice। Equality and justice are inseparable। लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य विचारों में से एक है उनका न्याय और समानता के प्रति वचनबद्ध होना। न्याय और समानता को एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। The earlier practice of untouchability is now banned by law। This group of people are denied education, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। छुआछूत की प्रथा पर अब कानून द्वारा रोक लगा दी गई है। लंबे समय तक दलित लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य और यातायात की सुविधाओं से दूर रखा गया। पहले हालात यह थे कि उनको मंदिरों में भी जाने नहीं दिया जाता था। डॉक्टर अंबेडकर, whom you have read about earlier in this book and many others like him, realized that such practices must not continue and that justice can only be achieved when people are treated equally। डॉक्टर अंबेडकर, जिनके बारे में आपने पहले पढ़ा, और उनके जैसे कई लोगों ने जोर देकर कहा कि ये जो प्रथा है ये अमानवीय है। न्याय तभी प्राप्त हो सकता है जब सब लोगों को बराबर देखा जाए या सब लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार हो। द गवर्नमेंट ऑल्सो रिकॉग्नाइजेज दिस एंड मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर ग्रुप्स विद इन सोसाइटी दैट आर अनइक्वल। फॉर इंस्टेंस, इन आवर सोसाइटी देयर इज़ अ जनरल टेंडेंसी टू वैल्यू एंड केयर फॉर द बॉय चाइल्ड मोर देन द गर्ल चाइल्ड। सरकार भी समानता और न्याय की ज़रूरत को पहचानती है और उन ग्रुप्स के लिए विशेष प्रावधान करती है जो समाज में अब भी बराबर नहीं माने जा रहे हैं। जैसे हमारे समाज में यह आम धारणा है कि लोग लड़कों की देखभाल लड़की से ज़्यादा करते हैं। दिस मीन्स
that society does not value the girl and boy child equally and this is unjust। इसका मतलब यह है कि समाज लड़कियों को उतना महत्व नहीं देता जितना लड़कों को देता है। यह धारणा, ये जो सोच है, ये गलत और अन्यायपूर्ण है। In this context, the government steps in to promote justice by providing special provisions that can enable girls to overcome the injustice that they are subjected to। इसे दूर करने के लिए सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ विशेष प्रावधान किए हैं जिससे लड़कियां अपने साथ होने वाले अन्याय से छुटकारा पा सकेंगी। Thus, it is possible that fees for girls might be waived or lowered in government schools or colleges। उदाहरण के रूप में सरकारी स्कूल और कॉलेजों में लड़कियों की फ़ीस खत्म या कम करने का प्रावधान किया गया है।